اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں سوال جواب سیشن کی طرف. انعامات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. کتنے ہیں صاحب یہ انعام؟ 15 انعام ہیں. ٹھیک. سوال کے لیے بولے گا کوئی نہیں. یاد رکھیے ہم نے کہا تھا کہ بولنا کسی کو نہیں ہے اور صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ہم اسے پوچھیں گے. ہاں شروع کریں. سوال پوچھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نمبر 45 میں کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ آیت 45 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے کہ مدد مانگو. بتائیے کس کے ذریعے سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے؟ بیٹا میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ کو بولنا نہیں ہے, لہذا یہ سوال کینسل ہو گیا. آپ کو آتا ہے, جتنی لڑکیاں نے ہاتھ اٹھایا ہمیں معلوم ہے آتا ہے, لیکن ہم جس کو کہیں گے وہی جواب دے گا. ٹھیک ہے, سوال یہ کینسل ہو گیا. اس وجہ سے جب ہم نے آپ کو انسٹرکشن دیے تھے بولنا نہیں ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو انعام کی. ایک نعمت بتا دیں جو بنی اسرائیل پر انعام کی تھی. ہاں ہاتھ اٹھانا ہے, بتائیے. ٹھیک, بالکل صحیح جواب. ایک انعام کی بہت سی چیزیں, ہم نے کہا ایک بتائیے, تو انہوں نے بتایا من و سلوہ اللہ نے اتارا اور انہیں کچھ کیے بغیر ان کو حاصل ہوتا رہا. یہ بہت بڑا انعام تھا اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے. ماسٹر صاحب میں نام بھول گیا, میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے انعام حاصل کریں. کہاں ہیں؟ ماشاء اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ شبانہ ناز. ماشاء اللہ. نیکسٹ دوسرا سوال پوچھا جا رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا, نہ ہی کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی کسی کی طرف سے فدیہ دے کر چھوڑا جائے گا. اور آگے کہا اور ان کو نہیں نصیب ہوگی کیا چیز؟ تم بتاؤ. مدد. صحیح بات, صحیح جواب ہے. اور اس کو کسی طریقے کی مدد نہیں ملے گی. لیجیے حذیفہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انعام دیں اس بچی کو. نام بتاؤ بیٹے اپنا. علیشہ. شاباش. اب اگلا سوال, تیسرا سوال ہے, بتائیے آل فرعون سے نجات ملی اور وہ تکلیف بھی دیا کرتے تھے عذاب کی, تو وہ کس کو ذبح کرتے تھے اور کس کو چھوڑ دیا کرتے تھے؟ ہاں بتائیے. شاباش. یعنی ٹھیک ہے, میل کیوں ایسا کرتے تھے یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. ایسا اس لیے کرتے تھے کہ انہیں یہ تھا شک کہ اگر کوئی مرد جوان ہو جاتا ہے وہ میرے برابر میں کھڑے ہو کے میرا مقابلہ نہ کرے, اس لیے بات سمجھ میں آئی, اس لیے وہ کسی کو چھوڑتے نہیں تھے. عورتیں تو مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں پائے گی, مرد آئے گا مقابلے میں اس کے فرعون کے. اس لیے تو انعام جناب مبارک الحق صاحب
के जरिए से इनाम दिया जा रहा है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। इधर से ले लो, इधर से दो, चलिए इधर से। बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके चले और एक समंदर आया, इधर भी पहाड़ था उसके और इधर भी पहाड़ था, बीच में एक बहुत चौड़ा रास्ता था। अब इधर पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, इधर पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते, पीछे जाएंगे तो फिरौन का लश्कर है, वो हमें मार देगा। और बीच में एक नहर थी, वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब तो हमारे सामने मौत है, क्योंकि आगे यहां डूब जाएंगे, पीछे वो मार देगा। तो फिर बताइए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने, बहुत आसान सवाल है, क्या किया जिससे अल्लाह ने उस कौम को बचाया? हाँ, ये बिटिया बताएगी, छोटी सी बिटिया। हाँ, हाँ हाँ, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, जबरदस्त। भाई साहब इनाम दे इन्हें। नाम क्या है बेटा? अलीशा, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। देखिए, ये सवाल जो आपसे पूछे जा रहे हैं, ये आपका रिवीजन भी हो रहा है और आने वाले वक्त में जो जनवरी में आपका पेपर होगा, फरवरी के पहले हफ्ते में भी हो सकता है, क्योंकि 26 जनवरी को संडे है, तो हमारा लास्ट संडे अब जनवरी था, तो अब वो जनवरी का 26 जनवरी को हमने छोड़कर फरवरी के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह हम आपको डेट देंगे, तो ये सवाल उसमें भी आपके काम आएंगे। सवाल है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम, जब वादा किया हमने मूसा अलैहिस्सलाम से, कितनी रातों का? हाँ बताओ बेटा। 40 रातें, सही जवाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें बोलने, हाँ, वेरी गुड, दीजिए साहब, माशाल्लाह, जबरदस्त। ये बिटिया पिछले हफ्ते भी काफी कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत बहुत मुबारक आपको बेटा। वाइद आतैना मूसल किताबा वल फुरकाना लअल्लकुम तहतदून, और जब दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब और फुरकान ताकि तुम हिदायत पाओ। ये फुरकान क्या चीज है किताब के अलावा? लास्ट है क्या बताइए? डिफरेंस फुरकान का क्या मतलब है यहाँ पर? फर्क कर देने वाली चीज। हाँ, फर्क कर देने वाली चीज। आप बताओ बेटे। हाँ, हाँ वो तो उन्होंने बता दी, डिफरेंस पैदा कर देना, ये सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है, आपका भी जवाब सही है और उस बच्ची का भी जवाब सही है। तो उसने जवाब दिया था इंग्लिश में डिफरेंस, वहां पर जो है वो जवाब हम कंसीडर करेंगे। कहाँ है भाई? शरीफ साहब को बुलाइए, लिफाफे खत्म हो गए। पेन है तो पेन दीजिए भाई इन्हें, और इन दोनों बच्चों को दिया जाता है क्योंकि दोनों ने ही बताया है। लीजिए, आइए दोनों इधर आ जाए, और शरीफ साहब आप ही दे दीजिए इन दोनों को। आइए बेटा। माशाअल्लाह, जबरदस्त। काला मूसा लिकौमिही या कौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम। बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कौन सा ऐसा काम किया जिसे अल्लाह ताला ने ये कहा कि तुमने जुल्म किया अपनी नफ्सों पर? हाँ बताओ बेटा। हाँ तुम बताओ। हाँ तुम बताओ। उन्होंने बछड़े को माबूद बना दिया। सही जवाब कि उन्होंने बछड़े को माबूद बना दिया। जोर से बताओ।
ये जुल्म है। उन्होंने बछड़े को माबूद बना दिया। शाबाश। लो बेटा, अब मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं इसको। ये बहुत बड़ा जुल्म है। माबूद बनाना यानी इबादत करना, किसी की भी इबादत करना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। कुरान की एक आयत है सूरह लुकमान में, अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। यानी जितने गुनाह इकट्ठे किए जाएं, सब गुनाहों को एक तराजू पे यानी पलड़े पर रख दे और शिर्क को इधर रख दिया तो वो बैठ जाएगा। यानी इतना भारी है, इतना बड़ा है, इतना इसकी डेंसिटी है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा शिर्क जो है जुल्म है। तो बछड़े को की इबादत करना ये क्या था? शिर्क था। और उन्होंने अल्लाह की इबादत के साथ साथ बछड़े की भी इबादत शुरू कर दी थी। तो याद रखिए, हमारे यहां पर भी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भी जगह जगह लोग ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं, लोग उज़ैर अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको माबूद बना दिया था, रब बना लिया था। इसी तरह लोग जो हैं वो चीजों की इबादत करते हैं, चीजों की इबादत करते हैं। कुछ लोग रोजा रखते हैं इंसानों के लिए, जबकि किसके लिए रखना चाहिए? हाँ, यहां पर इंसानों के लिए भी रोजे रखे जाते हैं। याद रखिए, किसी इंसान के लिए भी रोजे रख सकते हैं हम, ठीक है? किसके लिए रोजा रखेंगे? अल्लाह के लिए। तो रोजा रखना भी इबादत है और ये भी सबसे बड़ा जुल्म है। अगर अल्लाह के अलावा कोई भी काम जो अल्लाह के साथ किया जाए और वो किसी और के साथ किया जाए तो ये सबसे बड़ा जुल्म है। हाथ किसके आगे फैलाना चाहिए? लेकिन आपने तो किसी और के आगे हाथ फैला दिए। क्या करा आपने? शिर्क किया। और ये सबसे बड़ा जुल्म है, सबसे बड़ा गुनाह है। ठीक, मैं अगला सवाल पूछ रहा हूं। जब कहा मूसा ने, हरगिज मूसा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम देख ना लें। खत्म हो गया। मैंने आपसे कहा था कि आपको बोलना नहीं है, सवाल कैंसिल हो जाएगा। हो गया कैंसिल। नेक्स्ट, जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम उस दरिया को पार करके चली गई जहां सड़क बन गई थी, और वो जब पार करके वहां पहुंच गई तो वहां धूप बहुत थी, टेम्परेचर बहुत था। अल्लाह ताला ने कौन सी ऐसी नेमत उनको दी थी जिससे अल्लाह ताला का वो शुक्र अदा करे तो कम है? कौन सी नेमत? वो बच्ची बताएगी। हाँ, शाबाश, बादलों का साया, सही जवाब। देखो ये छोटी बच्ची, देखिए हम माशाअल्लाह, देखिए हम जो हैं छोटे बच्चों को तरजीह देते हैं क्योंकि हमें तो सबको मालूम है, लेकिन छोटे बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और ये आने वाले वक्त में दीन की बड़ी दाई बन सकती है, दीन का काम करने वाली बन सकती है। अभी से इसके अंदर ये जज्बा है। माँ से गुजारिश हो कि वो बच्ची को इनाम दे। माशाअल्लाह। अगला, जब उनसे कहा कि दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, फिर खाओ उसमें से जहां से तुम चाहो फरागत के साथ, और दाखिल हो जाओ इस दरवाजे से, क्या करते हुए? हाँ, आप बताइए। सजदा करते हुए। शाबाश, सही जवाब। शाबाश, गुड। हुज़ैफा साहब, इनको इनाम दें, इधर से दे दो, वहीं दे। माशाअल्लाह। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 सवाल और हैं, उसको हम इंशाअल्लाह बताकर अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। जब उन्होंने कहा कि सजदा करते हुए इस बस्ती में जाओ, दाखिल हो जाओ और जो चाहो फरागत
के साथ खाओ, और क्या वर्ड बोला कि ये कहते हुए जाना, वो वर्ड बताना है हमें और उसका मतलब भी बताना है। वो वर्ड भी बताना है, उसका मतलब भी बताना है। इस बस्ती में जाओ सजदा करते हुए और ये कहते हुए जाओ। वो क्या वर्ड था, क्या लफ्ज था, बताओ बेटा, वर्ड बताओ कौन सा था, कौन बताएगा? हाँ बताओ बेटा, हाँ बताओ। हित्वाकुम, सही जवाब लीजिए, माशाअल्लाह। मैं मिसेस शाहनवाज से गुजारिश करूंगा मैडम जी कि वो बच्ची को नाम है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। देखिए आपको नॉलेज हो रही है, इल्म बढ़ रहा है आपका, सवाल जवाब से इल्म बढ़ता है ना। हम अगर यहां बयान करते रहे तो कुछ आधे सोते हैं, आधे जागते हैं, आधे का ध्यान इधर होता है, लेकिन सवाल जब पूछा जाता है तो सबका ध्यान हमारी तरफ आ जाता है और बात और क्लियर हो जाती है। फिर बदल दिया जिन्होंने जुल्म किया था बात को, सिवाय उसके जो कही गई थी। तो बताइए उन्होंने जो बदल के क्या बोला था, वो बता सकते हैं? एक बात बता दें कि उन्होंने ये ना बोल के कुछ और बोला। बस्ती में गए, वो नहीं बोला, उनका हित्ता तुम कहो, लेकिन वो उन्होंने नहीं बोला। फिर क्या बोला? अब जरा मुश्किल सवाल है। आप माशाल्लाह काफी स्टडी कर रही हैं। हाँ जिसका हो गया वो दोबारा चेंजेस ना करे। हाँ बोलो भाई, इसका जवाब नहीं मिला। हाँ आप बताओ। तो उन्होंने कहा हिंदुत्व हमें गेम दे, हमें अपनी यानी सब्जियों के नाम देने करें, हमें ये वाली सब्जी दो, हमें ये दो और हमें वो दो, यानी कहना क्या चाहिए था? हमें बख्श दे, हमें माफ कर दे। अब इसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके गए, आपको मक्के से निकाल दिया गया, यानी मक्के वाले दुश्मन हो गए, आपकी जान के दुश्मन हो गए। फिर जब आपने मक्के फतेह कर लिया, अल्लाह ताला ने मक्के को फतेह करा दिया, तो फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हो रहे हैं, क्या कामयाब होकर कि हमने मक्के फतेह कर लिया। तो क्या आप अकड़ के जाते? कैसे गया? मतलब आपकी गर्दन ऊंट की गर्दन से मिली हुई थी, यानी झुके हुए थे अल्लाह के आगे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। हमारे यहां अगर कामयाबी मिलती है तो अल्लाह माफ करे नाच गाने होते हैं, डांस होता है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाएं कि आपने हमें कितना अच्छा, यानी शुक्र अदा करो। ईद मनाई, शुक्र अदा करो ईदगाह में जाके, है बात नहीं? शुक्र अदा कर रहे हैं। प्यारे नबी ने सजदे में गिर गए, यानी ऊंट पर ही सजदा कर दिया, अपनी गर्दन ऊंट की गर्दन से मिला दी और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। और कहा है मक्के वालों, आपको मैंने माफ कर दिया। जिन्होंने दुश्मनी की थी, मुझे मारने की कोशिश की, मैंने उनको भी माफ कर दिया। ये कितना बड़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जज्बा था। हमारे अंदर क्या है, जरा सी दुश्मनी होती तो माफ ही नहीं करते, इसको तो माफ ही नहीं करूंगा मैं। तो याद रखिए, मैंने आपसे कहा था माफ करने वाली जात अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जात है। और वो जात जो अल्लाह ताला की इस अदा को अपने अंदर ले आए कि मैं भी माफ करूं, जब मेरा रब माफ कर सकता है, वो खिलाता है, पिलाता है, सारी चीजें हमें अता करता है, उसके बावजूद उसके सामने उसकी नाफरमानी होती फिर भी उसे रिस्क पहुंचाता है। कितना बड़ा है हमारे अंदर। अरे वही तो बात हुई कि जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी के ऊपर इल्जाम लगाया और एक जो बैतुल माल से पैसा हासिल किया करता था उसको दिया जाया, उसको तनख्वाह दी जाती थी वहां से, वो उस इल्जाम में मुलव्विस हो गया, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने उसकी तनख्वाह रोक दी। तो अल्लाह ताला ने सूरह नूर में आयत उतार दी। क्या अल्लाह ताला, क्या आप चाहते हो अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? तुम लोगों को माफ कर दिया था, अल्लाह ताला तुम्हें भी माफ कर देगा।
कहने का मतलब यह जो इल्जाम की वजह से तुमने उसका रोका है, उसका तनख्वाह रोकी है, ये तुमने गलत किया है, उसका फौरन दो, माफ कर दो उसे। तो हमें भी माफ करना चाहिए। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िबा करने के लिए, मारने के लिए, आपका कत्ल करने के लिए लोग आ गए थे, लेकिन आपके बिस्तर पे कौन था? जब आपको मारने के लिए आए थे मक्के के लोग, तो आपके बिस्तर पे कौन था? हजरत अली थे। जब चादर खोली तो यहां तो अली लेते, हम तो मारने आए थे। और हर कबीले का एक एक शख्स था उनके साथ, और भाला लिए हुए, यानी जैसे खोलेंगे चादर फौरन सबके सब मारेंगे एक साथ, ताकि एक कबीले पर इल्जाम ना आए। ये देखिए आप, फौरन, लेकिन मारते उसी को जिसको मारने का इरादा करके आए। ये उनके अंदर क्या होती थी? ये उनके अंदर अच्छाइयां होती थी। जहां बुराइयां हैं वहां अच्छाइयां भी हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, मेरे ख्याल से 4 सवाल और हैं। तो उन्होंने, किसने जवाब दिया था? आपने, हैं? और ये मतलब आपके लिए, चूंकि आप वॉलेंटियर्स हैं, इसलिए वाइजिस तस्का मूसा लिकौमी फकुल नदरिब बिअसाकल हजर। ये बताइए, जब पत्थर पे छड़ी मारी तो कितने सोर्स निकले उसमें से? हाँ बताइए। 12। बताइए, माइक से बता दिए। 12 चश्मे फूट पड़े। वैसे आपका जवाब मुकम्मल हो गया, लेकिन अब आप मुझे बता सकती हैं 12 ही क्यों हुए? 12 शाबाश, वेरी गुड। लीजिए साहब, इनको इनाम दीजिए अपने हाथ से। सवाल नेक्स्ट, अगला। जब उन्होंने ये कहा कि हमें मसूर चाहिए, गेहूं चाहिए, फला फला चाहिए, और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम क्या बदलना चाहते हो? किस चीज से किस चीज को? हाँ, किस चीज से किस चीज को बदलना चाहते हो? अल्लाह ताला ने कहा कि तुम बदलना चाहते हो। किस चीज से किस चीज को बदलना चाहते हो? हाँ बताओ। हाँ, बेहतर चीज को अदना से। तो अदना मैंने बताया था कि ये जो चीज जमीन में उगाएगी वो चीज, और जो अल्लाह ताला भेज रहा है, कौन सी चीज बेहतर है? हाँ, जो अल्लाह भेज रहा है। यानी कितना बड़ा इनाम था। दो भाई इस बच्ची को इनाम। इधर आ जा बेटा, हुदैफा साहब देंगे। लदीना आमनु वल्लदीना हादू वन नसारा वस्साबीना। ये साबी कौन है जिनके बारे में आयत नंबर 62 में जिक्र हुआ है? साबी कौन है? अंदर वाले बच्चे नहीं जवाब दे रहे हैं, इधर भी जवाब दिया माशाल्लाह। कौन जवाब देगा? ये साबी कौन है? चलिए आप जवाब दिए। हाँ, साबी। हाँ, सितारा परस। हाँ, आग परस, सितारा परस, सही जवाब। माशाल्लाह, जबरदस्त जनाब। आखिरी सवाल है आज का। वाइद अखजना मीसाकाकुम, और जब लिया हमने पुख्ता अहद तुमसे, वरफाना फौकुमुत तूर, तो हमने उठाया तुम्हारे ऊपर तूर, खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, और पकड़ो इसे जो हमने तुम्हें दिया है साथ कुव्वत के, वज़कुरू, और याद करो, मा फीही, उसमें, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ। ये बताइए कौन सी चीज को कहा कि इसे मजबूती से पकड़ लेना? हाँ बताओ बेटा। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेना। कौन सी चीज थी अल्लाह की रस्सी जो उन्होंने दी थी? ना,
तुम बताओ बेटा, अल्लाह की किताब तो थी, वो कौन सी थी? हाँ बताइए। तौरात, सही जवाब, तौरात बिल्कुल सही। वो जो तूर पर गए थे तो कहा था इसे पकड़ लेना मजबूती से, उन्होंने छोड़ा, और आज हमारे यहां मुसलमानों ने भी कुरान को छोड़ दिया। ये तंजीम रईस रामपुरी कल्याण संस्थान ने 2000 लोगों तक इस कुरान को पकड़ने का अज़्म लिया कि हम वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेना। तो ये एक पैगाम है जो पूरे रामपुर में अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 स्कूलों में के बच्चों ने भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। कुछ बच्चियां वहां की स्कूलों की यहां पर हैं, और कुछ ऐसी हमारी बच्चियां हैं जो घरेलू हैं, जो कहीं स्कूल में नहीं हैं, उन्होंने भी 35, 40, 45, यहां तक के 65-70 साल की खवातीन ने भी इस रस्सी को, कुरान को मजबूती से पकड़ने का एक अज़्म किया है, एक ख्वाहिश की है, फॉर्म भरा है। मैं मुबारकबाद दूंगा उन सब बच्चियों को जिन्होंने इस अल्लाह की रस्सी कुरान को पकड़ने का एक दिल में यानी कहना चाहिए हमें कि इस किताब को पर जमे रहना, इस किताब को किसी हालत में नहीं छोड़ना। इसका मैं मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह ताला हमारी तमाम बच्चियों को इस किताब को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये बताइए कि मोबाइल कौन कौन लेता है? तो आपने अपने मोबाइल उठाए, मोबाइल है आप लोगों के पास, तो आपने क्या फेसबुक लाइक कर ली? अभी आप अपने अपने मोबाइल पर फेसबुक पे ये डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, तो इसको जो आप जरा बताएं। रईस रामपुरी कल्याण संस्थान का फेसबुक जो पेज है वो लॉन्च हो चुका है। इसके बारे में हमने 2 हफ्ते पहले ही बताया था, लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पर इतनी लड़कियां और इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इसका पेज है वो अभी मुश्किल से 30 या 35 लोगों तक ही पहुंचा है, उन्होंने ही फॉलो किया है। तो अगर आप लोग के पास यहाँ पर मोबाइल है तो अभी अपने मोबाइल के फेसबुक अकाउंट पर रईस रामपुरी कल्याण संस्थान के इस पेज को आप सर्च करें, और जब ये आपके सामने आ जाए तो इसको फॉलो कर लें, ताकि आपका ये मिशन, ये मकसद, ये हाजिरी, ये मेहनत, ये कोशिश दूर दूर तक लोगों तक पहुंचे। सोशल मीडिया का जमाना है, और अगर सोशल मीडिया के जमाने में आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सके तो फिर मैं समझता हूं इसका होना हमारे लिए तो कम से कम बेकार है। तो मेरी गुजारिश है कि आप खुद भी रईस रामपुरी कल्याण संस्थान के इस पेज को लाइक करें, फॉलो करें और दूसरे लोगों से भी कराएं। इसके लिंक को व्हाट्सएप के ताल्लुक से दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा ये मिशन, हमारा ये मकसद दूर दूर तक पहुंचे। आज का प्रोग्राम हमने लाइव करने की कोशिश की है, और बहुत सारे लोग हमने देखा है, अभी मैंने देखा इस पर कि शहर के बहुत अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं इस लाइव टेलीकास्ट के ताल्लुक से जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमें देख रहे हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और उनको मुबारकबाद भी देता हूं, और शरीफुर रहमान खान साहब के ताल्लुक से दावत भी देता हूं कि इस बार आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, अगली बार हमारी महफिल में आए, हमारे बीच आए और हमारी हौसला अफजाई करें। आप सभी से, जो लोग फेसबुक के ताल्लुक से हमें देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर हमें सामने से देख रहे हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि रईस रामपुरी कल्याण संस्थान के इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, क्योंकि ये जो प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, ये बहुत बड़ा मकसद है। ये मकसद है अपनी नौजवान नस्ल को दीन के करीब लाने का। ये मकसद है ये बताने का कि तुम कौन हो, और तुम्हारे मालिक ने, तुम्हारे खालिक ने, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हें इस दुनिया में क्यों भेजा है, किस लिए भेजा है, तुम्हारा काम क्या है। मैं शरीफुर रहमान साहब और डॉक्टर अनीस साहब ये दुआ करता हूं अपने मालिक से कि अल्लाह इनको इतनी ताकत दे, इतनी मोहलत दे कि आज
ये पहले सिपारे का यहाँ ट्रांसलेशन करा रहे हैं। वो दिन भी आए कि जब 30वें सिपारे का ट्रांसलेशन हो और इनका वो ख्वाब, वो सपना शर्मिंदा ताबीर हो कि रामपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान के एक एक घर में कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा जाए। और मेरा यकीन ही नहीं बल्कि यकीन कामिल है कि इनका ये ख्वाब, इनका ये सपना शर्मिंदा ताबीर जरूर होगा, इंशाअल्लाह जरूर होगा। डॉक्टर अमीन साहब से गुजारिश करूंगा कि आए हुए मेहमान जनाब मुबारकुल हक साहब को इस्लामी का पारा पेश करें। मैं मुबारक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो बताएं कि आज का प्रोग्राम उन्हें कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम जो आप लोगों ने यहाँ पेश किया, सवाल जवाब भी हुए, अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल का जिक्र हुआ, ये काबिल मुबारकबाद है, काबिल सताइश है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप लोग इसी तरह शौक से इसमें हिस्सा लेंगे और जो कुरान मजीद को न सिर्फ पढ़ना है बल्कि इसको समझना और इस पर अमल भी करना है। अल्लाह ताला हम सबको इसी तौफीक अता फरमाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ गुजरता आपके लिए साहब आए और वो गुजरता साहब को साहब हमारे बहुत पुराने साथी हैं और कदम कदम पर ये हमें एडवाइस करते रहते हैं। और आज का प्रोग्राम गुजरता साहब को कैसा लगा वो दो अल्फाजों में बयान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। इसे जिसने उतारा है उसे रहमान कहते हैं। सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये महफिल का इंतज़ाम किया। और माशाअल्लाह इस बात से और ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि लड़कियां ज़्यादा हैं, लड़के भी हैं माशाअल्लाह पीछे हैं, लेकिन लड़कियां हैं। लड़का अगर किसी तालीम को हासिल करता है, ख़ास तौर से दीनी तालीम को, तो अपने अंदर सुधार पैदा करता है। और माशाअल्लाह यहाँ लड़कियां हैं, लड़कियां अपने पूरे खानदान को, एक लड़की पूरे खानदान को सुधारती है। माशाअल्लाह आप लोग बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इस तरह के प्रोग्राम और रामपुर में भी होने चाहिए, लेकिन नहीं होते, ये हम लोगों की कमी है। माशाअल्लाह शरीफ रामपुरी साहब इसको अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी काविशों को कबूल फरमाए। जनाब अनीस साहब इसमें बराबर शाना बछाना लगे रहते हैं। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में के जाने के बाद मुकाम अता फरमाए और हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि कुरान जो है पढ़ने की किताब नहीं, रिसाइट भी की जाती है, लेकिन उसको पर अमल करना ज़रूरी है। अमल करके ही हमें जन्नत नसीब होगी। मैं आप लोगों से यही दुआ करता हूँ कि आप लोग इसके पर तदब्बुर करें। जो मैंने आपको कुरान की आयत पढ़ी थी, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इसकी अजमत पे बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ जो है अल्लाह के खौफ से, खौफ इलाही से फट जाता और रेजा रेजा हो जाता। और ये मसाइल अल्लाह ताला लोगों में बयान करता है ताकि उसको पर तदब्बुर किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उस लाइन में है कि तदब्बुर कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन कोशिशों को कामयाब बनाए। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नोमान गाजी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो हसीम भाई को अली शामीन का पारा पेश कर।
नौमान राजा भाई, जनाब हकीम भाई साहब, ये हमारे वालिद साहब के साथ शाना बशाना हर प्रोग्राम में जाना और सारा इंतजाम, सारा साथ रहते थे उनके। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आज यहाँ आए हैं उसी मकान में जहाँ पहले पापा के पास आते थे, आज उनको ये प्रोग्राम और अपनी यादें जो हैं वो 2 अल्फाज में बयान करें। जनाब हकीम भाई साहब। शरीफ भाई ने जो तारुफ कराया अपने वालिद साहब मोहतरम का, शायद शायर ने किसी ऐसी वक्त के लिए ये कहा होगा, याद मारी अलाब है यार मेरे भाई के साथ तकरीबन 19 साल इस तरह गुजरे थे कि जिसम तो 2 होने के लोग उनकी यादों की कुछ खुशबूदार भी मेरे पास महसूस है। और शायद कोई हमारे दोस्तों की मजलिस ऐसी हो जिसमें एक भाई का तस्करा न आता हो, लेकिन ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि उनमें से शायद हम जो तकरीबन 12-15 के दरमियान इसी तरह के थे कि हर वक्त बैठे बैठे जमा हो जाया करते थे, लेकिन आज तकरीबन ऐसा लगता है कि 2 लोग बाकी हैं। है इस सिलसिले में सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे दरमियान 2 चीजों को छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब कुरान पाक और एक मेरी सुन्नत सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम लोगों ने इसको मजबूती से पकड़ लिया तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे और तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। बस मेरे भाई और बहनों, इसका अज़्म करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह कुरान पाक को और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक हम जिंदगी के आखिरी लम्हे तक अमल करेंगे और इसको अल्लाह के दूसरे बंदों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि एक जगह फरमाया कि मुसलमान की 3 जिम्मेदारी है। एक तो ये कि मुसलमान किसी बुराई को अल्लाह पाक ने अगर उसको ताकत दी है तो उससे उसको रोके। अगर ऐसे हालात नहीं है तो फिर जुबान से किसी बुराई का इनकार करे कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो रहा है। और अगर ऐसे भी हालात ना हो तो फिर दिल से उसको बुरा जाने। ये भी इस्लाम का, दीन का और मुसलमान होने का एक आखिरी और कमजोर दर्जा है। खुदा करे कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे पहले दर्जे में काम ले, और ये शरीफ साहब के जरिए अल्लाह पाक जो काम दे रहा है वो तकरीबन पहले जैसे दर्जे में लगता है। इसकी कोशिश करें, आइंदा से ज्यादा बच्चियों को इसकी दावत दें और यहाँ लाने की कोशिश करें। और जैसे अभी हमारे भाई मुलाजा साहब ने फरमाया था, ये सच्चाई है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिंदगी में बहुत स्टडी की है। उस स्टडी में मैंने ये पाया कि कायनात के अंदर अगर किल्ली है तो वो औरत है। औरत के सुधरने से कायनात का निजाम सुधर सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि मर्द का दीन तो चौखट तक का है, लेकिन औरत का दीन घर के अंदर का है। पहला मदरसा भी औरत ही होती है। इसलिए भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को दावत दो और यहाँ लाओ, और माहौल से तब्दीली आती है, किसी और चीज से नहीं आती। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी सबको दी की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। आखिर दावाना जो कुरान हाफिज भी है, गुजारिश करूंगा कि वो मेरे साथी हैं, इसमें वो नाते पाक और शायर भी हैं। मुलाहिजा फरमाए बिना किसी तमहीद के नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलती जरूर है उसे रहमत रसूल की, मिलती जरूर है उसे रहमत रसूल की,
जिसने भी की है दिल से इताअत रसूल की, जिसने भी की है दिल से इताअत रसूल की। अजमत है जाहिर उनकी तो सभी रसूलों पे, अजमत है जाहिर उनकी तो सभी रसूलों पे, मेराज में है मानी इमामत रसूल की, मेराज में है मानी इमामत रसूल की। ना अहल बन गए हैं जो मिल्लत के पेशवा, ना अहल बन गए हैं जो मिल्लत के पेशवा, मुश्किल में पड़ गई है ये उम्मत रसूल की, मुश्किल में पड़ गई है ये उम्मत रसूल की। ऐसी पड़ी है नात के आशिक भी झूम गए, ऐसी पड़ी है नात के आशिक भी झूम गए, क्या काम कर गई है ये मिदहत रसूल की, क्या काम कर गई है ये मिदहत रसूल की। मक्ता भी कह दिया है मुबारक ने सुन लें ये, मक्ता भी कह दिया है मुबारक ने सुन लें ये, होगी नसीब उसको शफाअत रसूल की, होगी नसीब उसको शफाअत रसूल की। मिलती जरूर है उसे रहमत रसूल की, जिसने भी की है दिल से इताअत रसूल की। सुभान अल्लाह।